अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं मावा शजाज। वापस आ गई हूं मैं दुबई में और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद मेरी प्यारी सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. My pyari friend is back. Yes, we're all back with our regular bateं and I missed you, Sadaf. I missed talking about our regular share of Pakistani dramas. So thank you for giving me your time as always. Thank you guys for joining in. I know I've been MIA because I was traveling and then things were upside down when I came back and finally settled in. So we hope to bring you reviews and more interviews as soon as we can. Sadaf, without further ado, let's get into it. Let's start with my favorite. मैं मंटो नहीं हूँ. Sadaf, your take. Okay, now we had an offline conversation, right? Now, Yes. I've been really enjoying Manto, unlike a lot of other people. Hmm. But my big question was, you were saying, okay, this has a lot of depth. And Yeah. I said, okay, tell me why Humayun Saeed, Hamara superstar, Hmm. doing what normally is a role that Umair Rana, yeah, someone who's a good kind of like a supporting actor, and that's Hmm. not a decoration. Umair Hmm. Rana is a brilliant actor, but Yeah. you don't expect a film star or a superstar to do a role which is basically not quite the lead, but an important role Hmm. because it's looking more and more like the young men, the young lions, if you like, Yeah. the ones that are fighting with each other are Hmm. the leads. Or am I misreading it? I think I have to start with why I like Mehman Tonio. I think that this may be one of Khalil Saab's finest work yet. And I know that's a tall claim because he's done Hmm. a lot of great stuff in the past. I think what's clouding a lot of people's judgment is that Khalil Saab has written it. Had it been anyone else, any unknown writer, any other Hmm. writer, I can guarantee you this would have been this would not have been the reviews he would have gotten. This drama would have gotten. And अगली दफा से मेरा खलील साहब से एक मजाक में कह रही हूँ सूडोनिम में लिखना शुरू कर दें यू विल गेट हिट अगेन फिर एंड में लोगों को बताएं ओहो ये मैं था सो आई थिंक दैट इज क्लाउडिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स जजमेंट पीपल थिंक के जो डायलॉग्स हैं या महमल है या हुमायूं सईद और महमल का जो भी सजल का जो ट्रैक है वो कोई रोमांटिक ट्रैक है एंड ओ माय गॉड के आर क्यू तो हमेशा डिस्गस्टिंग चीजें लिखते हैं देयरफॉर ही हैज नो बाउंड्रीज एंड ही इज अ मिसोजिनिस्ट ब्ला 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 I'm still judging the story on its merits and demerits purely as what a story is and what he's trying to say. Um, I remember you and I having this conversation at the time of Gentleman as well कि जब हमने कहा था कि जी खलील साहब को क्रेडिट उनकी चीज का देना चाहिए कि वो एक सोशल कमेंट्री उन्होंने अच्छा जेंटलमैन में सोशल कमेंट्री बड़ी डायरेक्ट थी वो उन्होंने मुंह Right. पे जैसे वटा फेंक के मारा था कि देखो ये होता है व्हाइट कॉलर क्राइम ये होता है गुंडा क्राइम और गुंडे को गुंडा अच्छा भी हो सकता है वगैरह वगैरह. Here it's a bit nuanced because here the main story he's taking you inside the hearts of the people. And Gentleman was pretty इट वॉज अ प्रिटी एक डिस्टेंट व्यू था क्राइम का जहाँ पे एक बंदा बुरा था और एक बंदा अच्छा था और हुमायूं के कैरेक्टर को एंड में ग्रे कर दिया था. मंटो के अंदर जो ग्रेनेस है ना उसके अंदर ही आप स्विम कर रहे हैं. देर आर नो वाइट कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा एट ऑल. आई रियली होप दैट द ऑडियंसेस आर नॉट लैचिंग ऑन टू एनीबडी बीइंग द हीरो. देर इज नो हीरो इन दिस स्टोरी. दैट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स अबाउट मैं मंटो नहीं हूँ. I really don't think Xavier Manto is a hero. I really don't consider. I think he's a We're silly reframing it. हम लोग you're taking it out of the जो हमारी एक फ्रेमिंग होती है कि फ्रेमिंग होती है ये मेल बिल्कुल. लीड है, ये फीमेल लीड है। ये फीमेल लीड है, ये इसको हाँ, मोहब्बत होगी, फिर ये इस जालिम समाज होगा. वो पूरे फ्रेमवर्क से हटके ड्रामा है ये. तो पहले तो आप वो फ्रेमवर्क छोड़ें जिस फ्रेमवर्क में आप बाकी ड्रामे जज करते हैं. अब लोगों का बहुत ये इतराज, मैं कमेंट भी देख रही थी, लोगों का बड़ा इतराज था कि जी ये रोमांस दिखा रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में. आई डोंट थिंक सो। मैंने देर इज शुरू से नो कहा है कि नो रोमांस। रोमांस एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफा भी वो उसको प्यार से नहीं देख रहा, एक दफा भी वो उसको अफेक्शनेटली देख रहा है. एंड प्रॉप्स टू हुमायूं सईद फॉर यस, फॉर कीपिंग इट मैनेजिंग इन कंट्रोल, कीपिंग इट कंट्रोल इन उन्होंने कंट्रोल. रखी। वो एक दफा भी, और हुमायूं साहब को कितनी देर लगती है रोमांटिक शक्ल हमने उनकी देखी हुई है कितनी हजारों दफा. उनकी वो शक्ल ही ऐसी है, हंस माशाल्लाह के इतने देखते खूबसूरत हमारी तरफ। हैंडसम आदमी है वो. तो वो जब वो किसी की तरफ जरा सा भी मुस्कुरा के देखना चाहें तो उनके लिए क्या मुश्किल है रोमांस दिखाना. तो वो हुमायूं को प्रॉप्स जाता है. अंडररेटेड एक्टर है बिला वजह की उनके अगेंस्ट और मंटो के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है. Okay, and I will say this personally, that I was one of those people, uncle ne kya karna, uncle. Then I met him in real life, and it is like you only see 50% of the charisma that Humayun has. And all film stars are like this. Fawad Khan, all of these people, Allah ki taraf se, they have this very strong charisma and they're very attractive in real life. Can I And say something sometimes that's it doesn't gonna come on screen. can I say Hmm? something that's gonna land me on Reddit again? Acha.
I have met Shah Rukh Khan, I've met Salman, Mm, I've met a lot mm, of Bollywood actors, I've met a lot of Lollywood actors. मतलब माशाल्लाह हमारे सारे इतने प्यारे प्यारे हैं, mm. तो मैं किसी को ये नहीं कह रही कि ये इससे अच्छा है, ये सब, सबकी अपनी एक करिश्मा है, सबके अपना पावर है, लेकिन हुमायूं सईद commands his own charm, his own Oh, level for of sure, charm. for And sure. he is incredibly good looking, he's incredibly nice to people, he's a very down to earth, humorous, witty man. So I think that to turn off all that charm and to be a loser in Manto, he's a Mm. loser. Xavier Manto is a loser, he gets manipulated by everyone. ठीक है. मैमल बार बार हंसती है उसके ऊपर कि ये, हाँ. हाँ, राइट, वो उसकी बट पप्पो आके हंस के चली गई उसके ऊपर. राइट, यू नो. एंड मरियम तो 24 घंटे उसकी उसका वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं चीजा ले रही होती है, वो तो 24 घंटे, और उर्दू में कहते हैं ना छेड़खानी कर रही है उसके साथ मुसलसल. शी आई वो डोंट बहुत इवन, मजे, ये yeah, I don't even think she's genuinely interested in him. I think she just likes him as, like a toy, like a plaything. And what I also want to please clearly tell people about the difference and this dynamic between Mehmal and Manto is that this is not a romance at all. This is not a power dynamic where a teacher is kind of like a teacher is in a position of power and he's using that power to kind of intimidate the girl into having a romance, which is obviously that is wrong, obviously. मगर ये है ही नहीं वो कहानी. ये कहानी तो ये है कि ये लड़की महमल जो है, एंड बाय द वे ऑल्सो एक्सप्लेनिंग महमल्स कैरेक्टर हियर, जस्ट अ स्टैंड ऑफ पॉइंट हियर, दैट महमल इज अ सिली टीनेज गर्ल. सजल इज प्लेइंग हर इन अ वे कि वो थोड़ी, उसका मेकअप ऑफ है क्योंकि उसकी लिपस्टिक इतनी डार्क है, बाल इतने लंबे चौड़े उसके हैं, कपड़े उसने इतने बड़ों वाले पहने हुए हैं, तो वो ऑफ लग रहा है. इसलिए लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या क्या मसला हो रहा है, आई डोंट नो. You लेकिन know वो. what that is? It is because, and I can see where Sajal is going with this, हम्म. uh, and I'm why I'm giving her her break and why I haven't called it out हम्म. is I would have liked that simple look, the way that Mahira did in Hum Or a Kahan. Gen Z kid, man, a Gen Z Yeah, kid who's just starting college. लेकिन Yeah. ये एक पेंडन है जिसका पूरा टब्बर किसी ने कभी वो आप किसी सही कह रही से हैं, की वो आप शक्ल सही देखी कह नहीं। रही हैं, लेकिन दिल तो वाली शी गली में इज, आपको याद है, दिल वाली गली या, में, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, दिल वाली गली में आपको याद है जब काशिफ निसार ने उनको बच्चा दिखाना था, हेडबैंड सा लगा दिया. तो आई एम नॉट सेइंग कि उसको यहाँ पे हेडबैंड लगाते, लेकिन यहाँ कहीं स्टाइलिंग ऑफ है, कुछ गड़बड़ इस तरह हो रही है कि ऑडियंस ये कनेक्ट नहीं कर पा रही है कि ये लड़की एक चवल लड़की है, एक बदतमीज बेवकूफ गधी. इसलिए वही जो डायलॉग था ना कि आपकी बीवी थोड़ी सी मोटी हुई, ये डायलॉग कौन बोलेगा रियल लाइफ में? रियल लाइफ में वो बंदा बोलेगा जो बदतमीज बेवकूफ घर, बच्ची, बेवकूफ बेवकूफ बच्ची. बच्ची। वो हम्म, अभी अभी पिछले वाले एपिसोड में क्या हुआ था, शी जस्ट वॉकड इन, वो तो मैं आपका पूछ रही थी ना कि आप क्लास में क्यों नहीं आए, वो मिस मरियम ने मुझे कहा था. एंड ही इज हम्म। लाइक जस्ट सिट इन द क्लास, एंड शी इज जस्ट लाइक रैम्बलिंग ऑन. दिस इज अ हम्म। सिली स्टूपिड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी वाली लड़की. See, I see her clothes, right? And कई बार उसने शिफॉन का जोड़ा पहना होता है, कई बार उसने कुछ, and then I'm looking like, it makes you look older than you are. या. But then I give one point to Sajal हम्म. because she may have, and this is just me reading, she may have thought कि एक पेंडन सी लड़की है, she's got a lot of पॉसिबल. money. She's got a lot of money and she has no idea. जैसे उन्होंने एक सीन में इन बिरयानी उन्होंने दिखा दिया था कि व्हेन क्या उस लड़के का नाम है, खुशहाल. खुशहाल. खुशहाल, राइट, हम्म. वो थ्री पीस सूट पहन के जा रहा होता है कॉलेज बिकॉज ही इज ऑल्सो इन अ वे ही इज अ पैरेलल टू सज्जल की तरह है, बहुत ज्यादा पैसा है, कभी वो जो कूल या यंगर जनरेशन की वो कंपनी में रहा नहीं है, ही डजंट नो व्हाट्स कूल, तो वो सूट पहन के जा रहा होता है कॉलेज। एंड हम्म. देन तो ऑब्वियसली सरवत गिलानी के कैरेक्टर गुलमहर कहती है कि नहीं आप ऐसे ना करो, तो तुम 40 साल के बूढ़े लग रहे हो, हम्म. jeans and a top will do. So I हाँ, am giving आएंगे such उसके ऊपर. that excuse, right? हम्म. But otherwise, I think that every actor, and I say this to Yumna, to all these actresses, look, it is very tempting to look glamorous and be given clothes, ke aap ye pehen le, yeah, you like this or you think this, but you should listen to your stylist because this is part of your toolkit. जो आप अपने कैरेक्टर की पर्सनालिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, इट्स नॉट हम्म. जस्ट समथिंग यू वोर ऑन एयर, हम्म. राइट? So हम्म. use that as part of it. I think a few of our actors and actresses understand it, but I think apart Sajal from that, understands it. I think just something yeah, went wrong here because Sajal, yeah, when if you remember her previous work, if you look at how intelligent she हाँ, is as an actress, I don't think she went wrong here.
I mean, in the sense that I don't think she's not I don't think under he realizes the significance of it. That's what I would say. something has gone wrong. I don't know what, but something has gone wrong in her styling here. But because she's such a fabulous actress, the scenes are still carrying through. And there's that one scene which is my personal favorite in this episode is that when she calls him and says कि अगर वो ऐसे कर देता तो फिर वो ऐसे कर देता तो अच्छा बहुत सारे लोगों को सीन शायद समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ हाँ, कि मुझे वो सीन क्यों पसंद आया फिर वो कहता है कि फिर मैं उसको जान से मार देता मतलब अगर वो मेरा हाथ पकड़ के यूं कर देता मुझे गोली मार देता तो आप क्या करते फिर एकदम मैं इम्प्रेस हो जाती है कि हाँ और वो तो चले चावल है वो इम्प्रेस हो रही है वो क्यों ऐसे कर रहा है वो क्यों इस तरह की बात कर रहा है फॉर दिस यू नीड टू टाई इट टू द प्रीवियस कॉन्वर्जेशंस ही हैज बीन हैविंग there is a and he's a man in a manly society his manhood is being questioned his bravery is being constantly questioned questioned. constantly This is what I acha don't understand. and his name and also let's all look at Manto's Hmm. character because there's so much focus on these two crazy families. I think we've forgotten what Manto's character is. This is a man who's grown up without a father. He has abandonment issues, he has identity issues. Men who grow up without fathers always have, and Khalil always writes such boys really well. If you remember Pyare Afzal, he was a man struggling for validation through love. Lekin he had guidance. So Maulvi Subhanallah was there, He was there, but let's look at how fractured that relationship was. And here is a man who does not have, it's a non-existent relationship. Some dude had brought him up. वो उसका बाप भी नहीं था. तो जब आपकी आइडेंटिटी उम्र के इस हिस्से में आके क्वेश्चन हो रही होती है तो आप स्टूपिड चीजें करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ. आई थिंक दैट्स प्रीटी सिंपल. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक तो ये चीज है लेकिन एक और बड़ा मजे का सीन था मंटो का टू हेल्प एक्सप्लेन मंटोस कैरेक्टर जो कि इसी एपिसोड में है और वो ये था कि गोली गुंडे का बेटा क्यों चलाएगा हमेशा. मंटो क्यों नहीं गोली चला सकता. अगर वो गोली चलाएगा तो फिर मैं भी गोली चलाऊंगा. And Hmm. because of his autistic brain and because he thinks that 2 plus 2 is 4 and that's not really how the world works. Oh, can I interrupt you Yeah, there? yeah. You and me are saying this और नीचे comments में लोग लड़ी जा रहे हैं लड़ी जा रहे हैं नहीं राइटर ने तो नहीं कहा राइटर ने तो नहीं कहा right and then I heard an interview I think Humayun or one of the lead cast was Hmm. saying he's a very simple man he's Hmm. very simple very basic right so Hmm. I mean look okay the writer didn't say that but if it walks like a duck and it talks Talks like a like duck a duck, it is a it duck. might be a duck It is, right. and it goes to the whole idea that people don't understand autism really that well. So if somebody who's writing an autistic character, Hmm. it's very possible that he doesn't understand that he's writing an autistic character. A lot of times people don't understand bipolar disorder. हाँ कभी खुश रहती है कभी सैड हो जाती है भाई that could have been bipolar check तो करो. तो anyway वो तो एक overall speaks to the general lack of awareness of mental health in our society. But कमिंग बैक टू मंटो उसकी जो ब्रेन जिस तरह कॉम्प्रीहेंड कर रही है दुनिया को वो Hmm. ब्लैक एंड व्हाइट कर रही है क्योंकि अभी तक उसकी जिंदगी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट ही चलती रही है. अब Hmm. उसका एक क्वेश्चन एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया एंड दिस इज व्हाई आई लव द ड्रामा. It has such deep philosophical themes, and if you've read Manto, if anybody has read Manto, Yes. Manto wrote like this. Manto questioned society's morals, and I think that this is why I absolutely love how Khalil has created a character who's the Hmm. antithesis of Manto, questioning Manto's themes while Manto's themes are being played out in the shape of these two warring families. You have to understand it as a piece of literature and not as एक पाकिस्तानी ड्रामे में ये दिखा रहे हैं. भाई थोड़ा तो पढ़ पढ़ देख तो लो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर. बता बता रहा है राइटर बता रहा है. हम तो खलील साहब से भी नहीं पूछ रहे. राइटर खुद बता रहा है कैरेक्टर्स के बारे में. और एक और बहुत अच्छी चीज सदफ इसके अंदर क्वेश्चन जो डाला गया है मुसलसल जो through Farhad's character, through Nameer's character, through the way Suraya is built, is shown that you are deep inside the crevice of a violence filled world. ठीक है. वहां पे नॉर्मल रूल्स डोंट अप्लाई. मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पे आप मत एक्सपेक्ट करें कि वोक टेक्स देगी सुरैया. महमल बहुत समझदार होगी. उसकी माँ बिल्कुल तमीज से बात करेगी. बड़ा मजा का डायलॉग था. बड़ा मजा आया मुझे सबा फैसल के उस छोटे से सीन में कि बेटा Hmm. अब एक दफा रो लो अब रुखसती के वक्त रोना. यही तो होता है. इसी तरह तो He होती है शादियां. actually, Sabba Faisal's character is the most sincere one. And I feel sometimes that we're ignoring her. Uska character is a wounded mother. Her daughter हम्म. has been sacrificed, हम्म. right? I think that I was talking to people about this. हम्म. But mostly when you have one daughter and one mother, right? They're very close. हम्म.
I think when you have 3 or 4 daughters, तो हम्म। वो आपस में, a friend said this to me, आपस हाँ। में बेटियां खूब बातें करती हैं, तो चलो मदर के साथ इतनी क्लोजनेस नहीं होती. And I feel that Sabah Faisal has been robbed because she's constantly praying हम्म। कि बेटे ना मर जाएं. They हाँ। are in constant danger, right? And what has happened is कि बच्ची जो है, she's been ignored, हम्म। and वो होता है joint family systems में. And हाँ। also I think children can see किसकी इज्जत ज्यादा है, right? You हम्म। notice in the very first scene, Khalil Saab points out that the father is not upset that Sabah Faisal leaves the dinner table, but he is Yeah. upset at his sister. And a very Punjabi thing as well, by the Okay. way, Okay. right? So, there's a lot of nuances there, but हम्म। I wanted to say one quick thing about Manto Saab and Mehmal. हम्म। It's very easy for a sheltered girl to have a crush on a teacher. Yeah, very common. It is absolutely normal because वो कभी बाहर नहीं गई, और ये इंसानों वाला है. देखो ना, people surrounding her, who they are and what they do. Exactly. Murderers, thieves. I mean, the thing is, Murderers. The people who yeah, think violence is not a big deal compared to right. the man who saved a pigeon. Right. So for her, he's a new creature, or she's kind of surprised that he cares about her as a person. Now, Yeah. my small criticism is this: that they should have allowed, and this is where Briani is winning me over compared Hmm. to this. Haven't allowed anybody a personality. They're Hmm. all framed by their circumstances. Of If course. you look at if you look at Biryani, right, each character has a personality as opposed to being a character. Hmm. Sher ko aap dekhein, Sher is just Sher, right? Why is And he shared? Nobody knows. nobody knows, but it's assumed Sher is Sher and he's going to kick your ass, Hmm. right? But if you, or kabhi kabhi Sher, that's character, right? आपको पता है कि उनके असूल ये है वो है. But if you look at Biryani, you'll see, अच्छा, he wants to do something. There are some quirks. He's interested in reading. She's interested in reading. वो किसी को hospital लेके जा रहा है. Like actual human beings. Hmm. So, not just वो जो 2.5 dimensional characters. 2.5. So yeah, because I don't want to dismiss those characterizations. वो बहुत अच्छे characterizations हैं, Hmm. even in Sher, even in Manto. Hmm. So what is a little bit of that is missing, and if they had shown कि some of the, instead of sharatein, they had shown that Sajal was interested in a subject that she connected with her हाँ, वो teacher, आप पहले बोल चुकी हैं। हम्म। rather than सिर्फ पार्टियां हो रही हैं. So हम्म। that's, I अच्छा, think वो that's भी एक चीज छोटी सी मिसिंग इस तरह है कि वो जो क्रिटिसिज्म मेरा भी यही था कि आई थिंक मेरी आपसे बात हो रही थी, किससे बात हो रही थी, कि मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने, क्योंकि खलील साहब कभी कभी बहुत ज्यादा बॉलीवुड में चले जाते हैं, तो हम्म, खलील साहब ने इस चीज को थोड़ा सा मिस कर दिया। जैसे बॉलीवुड में ही होता था कि एक स्पॉइल्ड घराने की लड़की आती थी, फिर एक डांस हम्म, नंबर होता था, फिर एवरीवन जस्ट अज्यूम्ड दैट द होल कॉलेज इज ऑब्सेस्ड विद हर। ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो वाली बन जाती थी वो एकदम से। तो वो पू इज पू इन बॉलीवुड, यू वुड एक्सेप्ट इट। बट इन पाकिस्तानी ड्रामाज थोड़ा सा ना आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, दो डायलॉग डालने पड़ते हैं टू एक्सप्लेन, एक सीन डालना पड़ जाता है कि ऐसी क्या रीजन है कि पूरा यूनिवर्सिटी इसके पीछे पागल हुआ है। अच्छा, वो सीन बन सकता था, वो उसके सीन के बाद आना चाहिए था, जो वो सीन था ना, मोमेंट जहाँ पे वो कॉलेज में जाती है फुप्पो के साथ एडमिशन लेने, जो मना कर देता है वो उस्मान हम्म, पीरजादा का कैरेक्टर, वो मना कर देता है, और फिर उसके बाद एक वो फोन मिलाती आता है उसको, और फिर वो कहता है जी 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 जी। वो चीज ना, एक अगर वो इस तरह बनाते ना कि जैसे ये हुआ तो किसी स्टूडेंट ने सुना, स्टूडेंट ने रूमर फैलाया, फिर वो चीज पूरे हम्म, कॉलेज में ना एक खलबली मच गई, फिर टीचर स्टाफ रूम में डिस्कशन होने लगा, एंड देन मंटो एंड मरियम हैव जस्ट ओवरहर्ड दिस कि कौन है ये लड़की, क्या इतना सीन बन रहा है। तो उससे थोड़ा माइक्रोस्कोप में आ जाती महमल, वो जस्टिफाई हो जाता। उसके बाद आगे जो भी ऑब्सेशंस और जो भी, महमल को बुलाओ, महमल पार्टी में आ रही है, महमल की बर्थडे, महमल को ये किया, right. महमल It की would make शादी, sense. इट वुड It मेक सेंस बिकॉज नाउ शी इज अ थिंग इन द कॉलेज। right. मतलब कॉलेजेस में ऐसे होता है, कोई एक बन जाता है बंदा। तो और उसके पास तो हम्म. रीजन भी था, वो तो इतने बड़े गुंडे की बेटी थी, मतलब ये होता ना कि भाई पहली दफा गुंडे की बेटी पढ़ने आ रही है इस यूनिवर्सिटी में, वरना I गुंडों की think बेटियां कहाँ पढ़ती हैं। Azan Sami Khan gave an interview recently. हम्म। तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वेरी वेल शी, स्पोकन बॉय। yeah, he's very articulate हम्म। कि ना infatuation है उस लड़की को, और वो होता है हाँ। because he's a very different creature from the people and he's defended her या। several times. So in her world,
like any other woman would be upset with Manto Saab ke bhai, why are you bringing me into notice, right? Hmm. But she's very excited ke I am the man who will fight for your honor. That kind of bachpana hota hai. Also, don't you feel like Yeah. in teenagers, in girls that age, Mm, जो young adult लड़कियां होती हैं, इनको mm, attention seeking बहुत चाहिए होती है, और look at the issues her family is facing. yeah. अब इस फैमिली में इस लड़की ने कैसे कपड़े पहनने, कैसे करने, ये कौन देख रहा है? सिर्फ उनकी इविल Mm, डिमोनिक पप्पो, ठीक है। और अब कॉलेज में आके वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई है, वो बातें करती है, लोग हंसते हैं, वो एक mm, एक काइंड ऑफ mm. एक मस्खरी बन गई है वहां पे, एक चीज बन गई है, क्वीन बी बन गई है, फॉर वट एवर रीजन, क्वीन बी फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर टर्म। और ये तो उसके लिए बड़ा मजे का एक चीज बन गई है ना। तो उसकी, Right. She was nobody before, right? ही वॉज नोबडी, घर में Just क्या, a liability basically before. लायबिलिटी, शादी कर दो, और अम्मा अब्बा के इतने बड़े बड़े मसले, लोग मर रहे हैं, वो सुलह नहीं हो रही, अम्मा रो रही है, अब्बा अब्बा फड्डे कर रहे हैं, सुरैया अपने अलग कोने में बैठ के रो रही है, उसके बच्चे मर रहे हैं। Which I think that Sajal has done a fabulous job. यस, Acting, you cannot fault her, no, right? no, not at all. Never, never, Brilliant. never. But I just Mm. think it's the reason why people may be having trouble connecting with the characters because of her styling, and because I think that मेमल को जो एक दो सीन अगर उसके और डल जाते ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट आ जाता, तो फिर लोग Mm. कनेक्ट कर लेते। लेकिन मैं एक और ये भी बात बताती हूँ, मुझे लगता है मंटो के अगेंस्ट एक कैंपेन भी होती है, जो फैन वॉर्स चलती है ना, उसमें भी गड़बड़ हो रही है, वहां पे भी मुझे म्यूचुअल सस्पेक्ट्स आ रहे हैं। हम सुन रहे हैं. I don't think that the vast majority of the public gives नो, it बट a इट्स गेटिंग गुड रेटिंग, सो आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू द टीवी yeah. ऑडियंसेस। बस वो आप पे खुन्नस निकालने के लिए अगर आप रेडिट और ट्विटर और इंस्टाग्राम कमेंट्स में आ भी जाएंगे लड़ने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। eventually I saw a very good quote Mhm. which I shared, and it was that stop being afraid of your art being not liked by losers. So people Mm. who cannot create, people who only have those keyboard जहादी बने होते हैं, और फिर उनको बस ट्विटर पे या उधर बैठ के अनएम्प्लॉयड अपने बेसमेंट से या अपने ऑफिस के टॉयलेट में से बैठ के वो कह रहे होते हैं ये क्या कचरा बना दिया है आपने। तो आपको पता भी है कितनी मेहनत लगती है एक पीस ऑफ आर्ट बनाने में। एंड हुमायूं ने एक और अच्छी बड़ी बात की थी अमरीन फातिमा को एक इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा था कि आर्टिस्ट को पता होता है कि वो क्या साइन कर रहे हैं, उनको खूब पता होता है, वो देख भाल के, और इतने बड़े ज़ाहिर है जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको कोई ना कोई जहन में तो उनकी चीज होती है, भंड भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर अब ये भी एक क्रिटिसिज्म वो हो रहा है ना कि तनकीद कौन कर सकता है, तनकीद कौन नहीं करता, सब इस पे हम एक अलग बहस करेंगे। लेकिन Nora, मेरा I think that's a very long discussion. डिबेट इस पे हम बाद में करेंगे। करेंगे. हाँ, वो हम Hmm. करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है कि कौन Hmm. तनकीद कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसकी तनकीद वाले थे नहीं, बट आई Can थिंक we can we talk about the two young men who have kind of like overshadowed this how episode? good is They were, Azan and how good is Namir? My God, oh my such gosh. fire in that scene. Both are brilliant. And Uh, Go ahead, go ahead. Sorry. no, I'm just saying that scene is wonderful. You That know the they face off. confrontation, but I really wanted to give props to Nadeem Baig for Nadeem this. Beg, for Right? sure, for क्योंकि sure. ये दोनों हीरो के माफक है, right? Hmm. अजान भी, alpha male kicking. मैं Lekin to send उसको, out the message that no, they're still the villains is amazing. yeah, Very, very well pointed out. you can see कि वो कह रहा है कि मैं romantic hero हूँ. In his eyes, he's the romantic hero. Forget about the girl that he just threw away, right? And Yeah. Namir comes, and Namir, वो जो gun के angle and all of this, and man alive, and I'm looking, I'm like, हाय कितना प्यारा लग रहा है, and Uh, I'm 16 again. And then you see the confrontation, and you literally see their vicious faces, और वो जो उनके खूबसूरत चेहरे पहले उजले और खूबसूरत थे, suddenly in that shadow they look like monsters. वो जो that's जब face amazing. off in the car, and I want to give Nadeem Bey credit for this, and I want to give those two actors for that as well, because suddenly वो जो एक viciousness नहीं एक चेहरे पे आ हाँ। जाती, and that was there, and you realize कि ये तो these are not heroes, ये तो गुंडे हैं, and किसी की भी जान किसी वक्त ले सकते हैं. असल So में सारा it's staying true to message throughout. The actors are understanding the oh, I worship. assignment, the Mm, the director, the writer is on message, and mm, that is the brilliance of one of the many points that holds the brilliance of मैं मंटू नहीं हूँ is this, that they're all sure about what is the end point that they're trying to make. right. often क्या होता है, वही जो आप और मैं अक्सर हम इस पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या होता है कि हम पूछते हैं अच्छा ये हीरो है या ये विलन है, am I supposed to like this person, am I supposed to justify in my head what this person has just done? So Khalil has said no, Mm, no, these are violent crazy people, remember that. And also you, as soon as you slightly take a step back and you think अच्छा maybe I can hope, maybe कुछ सही हो सकता है यहाँ पे, and then you're taken back into Surayya's world.
And Soraya's world is so bleak. Look at the tone, and there's a scene She where Sajal is demonic. She demonic. And there's a scene where Sajal is going around and she's talking to her, दुपट्टा पहन रही है, चाय निकाल रही है, कर रही है, चलते फिरते ना वो बड़ा flippantly अपने सारे काम कर रही है. And I want you, if anybody has time, please go back and watch that scene and watch the 15 expressions Saima ji gives as she just sits down and listens to her. साइमा जी को मैं ओ आई नो भाई, आई ओ कैन गिव भाई, एन अवार्ड टू, सेम. क्योंकि वो ऐसे कई बार लगता है जैसे वो सजल जब इस तरफ देख रही होती है ना, साइमा जी ऐसे लग रही होती हैं जैसे कोई शैतान इसे इस खा नहीं बेटी जाएगा, के उसको खाने के डिवावर लिए करने के लिए कर रहा बैठी है। हुई है. राइट, और फिर एकदम वो मुड़ती है तो उनकी पलकें नीचे हो जाती हैं। हाँ लाडली, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, यार, So that is like that switch. I think, we need to praise our actors. I really फॉर do, because श्योर. there's so much subtlety there. ओ So माय गॉड, ओ माय गॉड. अच्छा, mm, मैं साइमा की जो परफॉर्मेंसेज हैं मैं देखती हूँ. पहले भी हमने उनके बड़े ड्रामे और बड़ी चीजें, उनकी mm, ड्रामे तो खैर कमी किए हैं उन्होंने. yes, उनके वो किए हैं उन्होंने, फिल्में बहुत देखी हैं. please some of the हाँ बिल्कुल, उनकी फिल्में देखी हैं, जो क्रिंज वाली हैं वो भी देखी हैं, मजेदार वाली भी देखी हैं. अच्छी फिल्में भी बहुत बनाई हैं साइमा जी mm, ने, सैयद नूर साहब ने. बड़े लेजेंड्स हैं ये हमारे, डिजर्व करते हैं प्रॉप्स. और मैं ये कहती हूँ कि टू यूज हर इन दिस वे वाज सच अ ब्रिलियंट आइडिया. कास्टिंग हर वाज सच mm, ब्रिलियंस. And Saima is doing such justice to the role because there is so much going on in that character, because you have to constantly remember that this is about revenge. So the way that she's dressed, and it reminds me, the whole drama often reminds me of Game of Thrones, because if you remembered a lot of those women who were dressed in that time, जो थोड़ी सी फ्री स्पिरिटेड औरतें थी, उनके थोड़े गले बड़े होते थे, थोड़ी ढीली ढीली आस्तीनें होती थी. नोटिस हाउ साइमा इज ड्रेस्ड. बॉटल नेक्स, बंद गले, शेरवानी गले, टाइट वाले, यहाँ वाले, डार्क 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 कपड़े. देयर इज हार्डली एनी मोमेंट्स वेयर शी इज वेयरिंग लाइट कपड़े. और सो केनो बंद किया हुआ है हर उन्होंने चीज बॉटल्ड भी। है, हर चीज बंद है. इट्स डार्क, इट्स लाइक अ अंधा कुआं जहां पे आपको नहीं पता क्या निकलने वाला है, और अंदर जाना सांप बैठे हैं. तो और वो दिखते हैं उनकी आंखों में कभी कभी, दैट फ्लैश ऑफ एंगर दैट शी गेट्स. अच्छा, कभी कभी मुझे उनकी, पता नहीं मैं गलत भी हो सकती, पता नहीं उन्होंने ये चीज डाली नहीं, क्योंकि मैं इतना गौर से देख रही हूँ ड्रामा. मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि जब वो महमल को हंसते खेलते देखती है ना, तो उनको तो अपनी गुस्सा औलाद चढ़ रहा होता गुस्सा उन्हें। चढ़ता है कि मेरी औलाद नहीं है ये, मेरी औलाद आज हंस बोल नहीं रही है ये. Acha, this is one thing, and you may to bolster your point is that I think Sabah Faisal kind of realizes this, but पॉसिबल. she's not sure of the depth. वो ये समझ रही है कि it's a very shallow resentment. अच्छा, She होता है ना doesn't जब want to आपके keep आपके the पास, resentment in. लाइफ सेट होती है काइंड ऑफ. सबा फैसल की लाइफ साइमा से तो ज्यादा ही सेट है ना. मियाँ है, बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा ऐसा है, दूसरा जेल में है, लेकिन जिंदा है फिर भी. और वो उनकी पूरी, हाँ, उनकी गेटअप से लगता है, जेवर हैं, अच्छे कपड़े, ब्राइट कपड़े, बाल बने हुए, तेज, अच्छा मेकअप हुआ हुआ है, जबरदस्त मेकअप हुआ हुआ है. तो जब इंसान एक थोड़ी लॉफ्टियर पोजीशन पे होता है. पंजाबी तो isn't it सुहागन है। नहीं तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि साइमा तो नहीं है ना ऐसी. तो मेरे हम्म मेरा मैं उसी को पिक करते हुए बात कर रही हूँ कि सबा फैसल वो औरत प्ले कर रही है कि जिस औरत के पास जिंदगी में जब सब कुछ होता है, मतलब एटलीस्ट दूसरे से ज्यादा ही होता है, तो वो कभी कभी बेध्यानी में नहीं रियलाइज करता कि मेरे बराबर में बैठा हुआ कितनी आग में जल रहा है. नहीं नहीं, I will disagree with you there. Okay, हम्म. so I think that Sabah Faisal senses her character at least, So right? you think she knows Senses her the danger. resentment? अच्छा, आई Yes, डोंट she थिंक शी डज does. ऐसे. अच्छा चलो, ये लेकिन तो फिर. एक होता है कि आप किसी के बारे आपको होता है ये बंदा मुझसे इरिटेटेड है, लेकिन हम्म. कितनी वो आपसे नफरत कर रहा है और किस हद हम्म. तक वो गिर सकता है, वो आपको अंदाजा नहीं नहीं। नहीं, अंदाजा आपको नहीं पता कि वो पूरा फुल तैयार कर रही है Yeah. उसको, मटन टिक्का कि बनाने वाली है उसका. क्योंकि आई थिंक इन सबा फैसल इज इरिटेटेड कि मेरी बच्ची ले गई है, लेकिन वो चुप है, मजबूर है, एंड हम्म. शी कैन फील समटाइम्स रिस्क, क्योंकि एंड आई गो बैक टू आमना मुफ्ती ब्रिलियंट हम्म. उल्लू राय फरुख्तरी, जो हम्म. माँ है ना, माँ लाइक अपी इज थिंकिंग फॉर यमुना जहदीज कैरेक्टर कि इसकी जल्दी से शादी हो जाए, ये हम्म. बच जाएगी, जो मेरी जिंदगी में हुआ इसके नहीं। एंड वो यमुना इज काइंड ऑफ लाइक द रिबेलियस टीनेजर कि मैंने या. उसके साथ जाना है, राइट। एंड द सेम विद दिस, वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी की शादी करी होती है, बिकॉज जो माए हैं ना, दे कैन सेंस द डार्क क्लाउड्स कमिंग इवन इफ दे हम्म. कांट आइडेंटिफाई द हु कांट द डार्क पिन क्लाउड्स पॉइंट आर। एग्जैक्टली. अच्छा, मेरा मेरा थोड़ा सा डिफरेंट यही ओपिनियन है. मुझे लगता है उसको पता ही नहीं है.
अच्छा। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो एक अलग उसमें है, इसीलिए वो बदतमीज, वरना वो अगर ऐसा होता ना तो वो महमल को थोड़ी कॉन्फिडेंस में लेती, उसने कभी नहीं लिया। वो महमल को कहती है जो कह रही हूँ चुपचाप सुन लो, चलो आगे काम करो, आई हैव अदर थिंग्स टू डू। This is unfortunately what the dynamic in a lot of joint family systems happen. एंड व्हाट अ ग्रेट कमेंट इट इज आल्सो। Yeah, because what has happened is वो अपने बेटों की जान बचाने के चक्कर में 24 आवर रहते हैं, और वो जिंदा है कि नहीं। एंड शी हैज लिटरली, आई थिंक, वो नहीं है, फादर ने मेमल को अपनी बहन की गोद में डाल दिया। हम्म। किसकी गोद में डाल दिया? वो तो समझ रहे हैं ना, मैंने अपनी बहन की गोद में डाल दिया, बट एक्चुअली वो उन्होंने अपने दुश्मन की गोद में डाल दिया। ऐसा ही है। बिकॉज बिगेस्ट एंगर आई समटाइम्स फील दैट Pupo has is against her brother, not the other people, I na? think she's just angry at everyone. When I look at her looking at Mehmal, I think she's full of fire. And like I posted a huge But status about it. are people like that? I think what, okay, and this is my final word because बहुत इसके ऊपर लंबा हो हाँ गया। मैं आगे भी जाना है, I हाँ। hope, I hope we will get a little backstory to the deaths of Saif. I think one of her sons या was इवन called. कुछ था ना सीन में, कुछ था कि वो जो डेथ्स Yeah, वेथ्स के सीन थे, she कुछ होगा। may be blaming the brother, पॉसिबल। right? आई थिंक शी डज। Yeah, फ्यूड no, का no, तो वो। in a more specific sense कि तुमने ओके। ये डिसीजन ना ली होती, या ऐसे सामने ना आते, या something. There's something अच्छा। that I think that Khalil Saab is keeping up their sleeve. ओ शो फॉर श्योर, आई Yeah, थिंक देयर इज अ लॉट। आई मीन वो देखे ना इफरा कहाँ गई, और yeah. खलील साहब की स्टोरीज में ना I कोई don't ऐसी। think Ifra is dead, by the way. I don't think she's dead. हाँ जो भी है, बट वो ऐसे ही कोई कहानी कोई कैरेक्टर इतना बड़ा बिल्ड करके जाने नहीं देते, वो वापस लेकर आते हैं उसको सही मोमेंट पे, तो वो आएगा आई थिंक। एनीवे वी लव मेमेंटो, नहीं हूँ आई डू। सदफ, यू डू, यू लाइक इट, यू हेट इट, व्हाट्स No, योर। no, I don't hate it. I'm intrigued by it. And I think दैट that's sometimes more important than, oh, आउटराइटली लाइकिंग, और हाँ। like Fairy Tale was a drama that you fell in love with because it was a rom-com, and I हम्म। really enjoyed it, right? But some dramas are there because they want to make you think, and there's a reason. हम्म। Khalil Saab की 100 ऐप हैं, लेकिन he's a thinking writer, हाय and हाय, अब तो डंडा the पड़ेगा। reason, आपके हिस्से के डंडे मुझे पड़ते हैं सदफ। जी, हैं? आपके हिस्से के डंडे मुझे भी पड़ जाते हैं कभी कभी। नहीं वो इतने भी बुरे नहीं है एक्चुअली। हाँ ओके, बस। माय वन क्लेम टू फेम इज आई इंटरव्यूड हिम डायरेक्टली। या। वो एक्चुअली इज क्वाइट पोलाइट वन ऑन वन। सो वो हम्म। पता नहीं क्यों व्हाई ही कम्स आउट विद दिस outrageous statements. I think पहले तो like when I talked to him he was very humble actually. So Also, he नहीं, makes a lot of good women-friendly points but also. I've said this now, so he will come out with something, right? एग्जैक्टली मैं भी ये कह रही हूँ कि वो कोई सही बात लिख दे, अगली एपिसोड में अल्लाह जाने क्या होने वाला है। सो मतलब Right. भाई हम एपिसोड बाय एपिसोड चले, टेक टेक अरे ईच डे अल्लाह। एट अ टाइम। फिर केस सरा सरा। अच्छा जी, अगला ड्रामा है बिरयानी। बिरयानी मुझे जैसा भी लगा मैं बताती हूँ आपको, सब आपको कैसा लग रहा I want to hear your take first, and there's a reason for it, है। right? या। Because I'm kind of loving biryani. It's हाँ। reeling me in, but I sense a little saltiness on your part. Okay, good news. I love Ramsha Khan in this. Like, I've been wanting to love Ramsha Khan in something. I didn't like her in Dunyapur that much. I think that this I is her didn't. zone. I think this is her zone. This urban regular girl is her zone. She should totally exploit it as much as possible. I think he should do these kind of roles and these kind of like salty, clapbacky, मॉडर्न। लाइक आई लव हर इन जन्नत से आगे, बट जन्नत से आगे थोड़ा सा ना डिम्योर सा रोल था, मतलब उसकी थोड़े शेड्स थे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे सी लड़की थी वो, कोई इतनी नहीं, बट ये एक बड़ी अच्छी बट पटाखा सी लड़की है, और एक नॉर्मल लड़की है। मुझे लगता है वो ये रोल बहुत अच्छा कर सकती है, और इतना अच्छा काम कर रही है वो बिरयानी। मुझे इतना मजा आ रहा है उसका काम देख के, उसकी डायलॉग Agreed. डिलीवरी वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। I, as an Urdu speaking person, find the whole dichotomy very offensive because I feel like everybody in that house is मतलब जो अम्मा जी हैं वो sanctimonious हैं, जो लैला वास्ती का कैरेक्टर है वो। Okay, like, can I put my oar in quickly? हम्म। I found them adorable. I didn't find them No, irritating at all. no। और वो जो अंकल थे, वो he should have annoyed the hell out of me, right? हाँ। He kind of like, I kind of found him sweet. So maybe it's me, I don't know. No, I don't find him sweet at all. And अच्छा। it's like how you feel when you say like क्या क्या सारे पंजाबी ऐसे तो नहीं होते ना, क्या पंजाबियों को ऐसे ना दिखाते ना हैं। करे, वो जो मन्नत मुराद की माँ थी। आई हाँ। वांट टू, आई कुडंट, बर्दाश्त So नहीं हो this रही। is me. This is me
when you were looking at Irsa's character over there. So I mean, and I love Irsa. Irsa is beautiful and amazing. Um, so in Biryani, my issue is that जो feudals दिखाए हैं उनके हम्म। ऐब भी थोड़े थोड़े ना वाइट वॉश्ड ही हैं कि मीठे हाँ, मीठे ऐब है ना, मीठे मीठे मीठी ऐब मीठी। हैं, ये हम लड़कियों की बच्चियों की स्कूल के लिए हम ये चीजें बनाएंगे और फिर हम ये इसको इससे अवाम को फायदा होगा। इतने बड़े मेंशन में बैठी हो, इतने बड़े घटिया सेटअप का आप बेनिफिशियरी हैं। फ्यूडलिज्म हाँ। हैज ईटन पाकिस्तान फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। ये फैक्ट है। 100। अब ये बात कर रहे हो तो फिर सुनो। हम्म। फ्यूडल्स की पर्सनल जेल्स होती हैं पाकिस्तान में, सबको पता है। ठीक है। आपकी पर्सनल fiefdoms होती हैं, जो बाय द वे वाज एक्सप्लोर्ड ब्यूटीफुली इन जोक सरकार, इफ समबडी वांट्स टू सी। राइट। सिमिलरली सिंध वो वाहिद सूबा है जहां अर्बन और रूरल का कोटा होता है। हम्म। पाकिस्तान के किसी और सूबे में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जब महाजिर आए थे सिंध में, तो अकॉर्डिंग टू सर्टेन पीपल महाजिरों ने सारी जॉब्स ले ली थी। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई सिंधियों को जॉब्स कैसे मिलेंगी, महाजिर सारी जॉब लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, वहां से आ गए थे। यहाँ पे इतनी तालीम वालीम नहीं थी, इतनी अच्छा, ज्यादा थे, ऐसा नहीं था। I have heard that creme de la creme came from ऑफ uh, कोर्स क्राइम डाला क्राइम, देख लें वहां का नॉर्थ बेल्ट का हाल, देख लें वहां की सारी नॉर्थ बेल्ट उठ के इधर आ गई थी। और जो छोटे मोटे थोड़े वो बचे थे, नाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। जो पूरी क्राइम डाला क्राइम थी, मुसलमान सारे जो थे वहां के, जो टॉप नॉच आपके hmm, जजेस, आपके राइटर्स, आपके बड़े बड़े मंटो साहब, चले महाजिर नहीं lectures. थे, थे तो महाजिरी, टेक्निकली सारे ही महाजिर हैं। लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, जो नॉर्थ इंडिया की वो पूरी बेल्ट थी, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी तरीन फैमिली, जायदादें अभी भी हैं, जो वहां रह गए उनकी अभी भी जायदादें हैं वहां पे। लुट पुट Hmm, के हम लोग आ गए थे, सब छोड़ छाड़ के, सब कुछ करके यहाँ पे कुछ जो छोटा मोटा गनीमत में मिला उसको कुछ बनाया, कुछ रह गया। आज भी डिस्प्यूटेड ही है, 70-80 साल हो गए हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो जितने लुट फुट के महाजिर आए थे, उन्होंने यहाँ तालीम वालीम हासिल की, शहर बनाया, आगे बढ़ गए। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 70s में उनको ये ख्याल आया कि ओहो ये क्या हो गया, ये तो सारी नौकरियां चली गई हैं। फिर एक सॉर्ट ऑफ एथनो नेशनलिज्म को उन्होंने फ्यूल किया, आज भी करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी टू से। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे काम भी करती है, लेकिन जो उनका फैक्ट है वो है, पंजाब में वो सूबे बनाना चाहते हैं, लेकिन सिंध में बिलावल भुट्टो साहब का नारा होता है मरसूम मरसूम सिंध ना डेसूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कराची अगर एक अपना यूनिट बन गया तो क्या होगा। जब चोट, जब डिवीजन की बात आती है, हमेशा वी पंजाबीज पे, राइट, हम हाँ लोग तो हम पे तो नहीं, पे करते हैं। हम लोगों ने भी किया है, पे महाजिरों ने भी किया है, अपने अलग तरीके से पे किया है। नहीं, आपका लेकिन लैंड आई कटा, आई डोंट, यू नो आपका व्हाट, लैंड आई बटा, डोंट लाइक हमारा, दैट। हम अपना आई लैंड छोड़ डोंट के आ गए ना, हमारा तो आई लैंड रहा डोंट ही लाइक, नहीं। आई डोंट लाइक द, वेल आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू पॉलिटिक्स, बट मुझे ना अजीब लगता है कि बार बार पंजाब के ही हिस्से काटने हैं, लेकिन द पीपल दैट लिव देयर कैन हम्म। सॉर्ट इट आउट। हाँ आई वो एम। मतलब एक ओवरऑल ही पाकिस्तान में 24 प्रोविंसेस की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है, चलें उस पर कभी और बहस करेंगे। लेकिन मेरे कमिंग बैक टू बिरयानी, उनकी जो फ्यूडल्स हैं, वो इस तरह की चीजों पे उनको वाइट वॉश किया जा रहा है। और इसको, इस आदमी को जो कि एक कह रहा है कि जी जिसको इस सिंधी लड़के से दोस्ती पे इतराज है, अपनी बेटी के कि वो ट्यूशन क्यों पढ़ा रही है, वो कह रही है, उसको फुल टाइम डिमोनाइज इस तरह किया जा रहा है कि ये तो पागल है, ये तो अभी स्टक इन दैट ओल्ड एरा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं दिखाएं, लेकिन आप बैलेंस रखें। आपने वहां पे प्रिटी मच 90% वहां पे अच्छे प्यारे मजेदार सी सरबत गिलानी, मीठे मीठे लहजे में बात कर रही हैं। अच्छा, पीपल आर वेरी फूल्ड बाय सरबत गिलानीज कैरेक्टर, और हम्म। मुझे ना बड़ी चिढ़ हो रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक शी इज दैट ग्रेट द दैट वे शी ग्रेट। आउट। पॉसिबल पॉसिबल। और मुझे जो यही लगता है कि, मुझे लगता है कि जो मतलब तहजीब और तमद्दुन की बात हम लोग करते थे कि जी हम महाजिर हैं, हम वहां से तहजीब लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए, तो वो हमसे स्ट्रिप कर लिया गया। वी आर नाउ जस्ट स्ट्रगलिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट इज ऑल्सो इन अ वे ट्रू, बिकॉज गेटोइजेशन हुई है बहुत ज्यादा कराची में स्पेशली। आपकी जो बहुत छोटी और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उसमें, क्योंकि महाजिर इज नॉट जस्ट उर्दू स्पीकिंग, राइट, देयर बंच ऑफ डिफरेंट स्मॉलर लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो हिंदुस्तान से आए थे, जो महाजिर कहलाते हैं, जो ग्रुप सब ग्रुपिंग है बेसिकली, और सब ग्रुपिंग में भी अंदर बहुत ग्रुपिंग है। तो पॉइंट ये है कि मेरा कंसर्न ये है कि जब आप महाजिरों को दिखाते हैं, जैसे बहुत सारे पश्तून लोगों को ये तकलीफ हुई थी कि संगे मरमर या खई जैसे ड्रामों या में ये क्यों दिखाया है, स्टेरियोटाइपिंग ऑफ पश्तून स्टेरियोटाइपिंग है। कल्चर। मुझे या स्टेरियोटाइपिंग का भी इतना मसला नहीं है, मुझे कहते दिखाओ महाजिर लोग दिखाओ। जैसे मैं मोइन अख्तर को कहती हूँ कि मोइन अख्तर वाज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर। ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ महाजिर, ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ मेमन्स, ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ पठान्स, पंजाबीज, बंगालीज, हिंदुस्तानीज, एवरीबडी लेकिन एवरीबडी। वो हमेशा अखलाक के दौरे दायरे में रहते थे, बिल्कुल दायरे में रहते थे। और दूसरी बात ये कि कमेडियन
का काम कॉमेडी करना होता है तो वो हर एक किसी ना किसी के एक्सपेंस पे ही होती है। मैं राइटर को भी कहती हूँ, जफर मिराज साहब, कभी ये ना समझे मेरी क्रिटिक का कि मैं नहीं चाहती कि आप आइंदा कभी, या मैं कहूँ किसी और राइटर को कि आप एक उर्दू स्पीकिंग बंदे का मजाक ना बनाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनो चंदा में वो जो वो हर थोड़ी देर बाद फरासत साहब दिल लेके बैठ जाते थे, हाय हाय मुझे दिल का दौरा पड़ा, हाँ होते हैं, चलें ठीक है आपने फन किया, इट्स ओके, सीरियस भी अच्छा, कहानी लिख रहे हैं। can I say the opposite kind of thing? I'm one of those people that get really fed up with this kind of stuff. But हम्म। मुझे अच्छा लग रहा था. I find that I know you find the mother जो क्या उनका नाम है, लैला वास्ती. लैला वास्ती, नायला वास्ती, लैला वास्ती She जी। is actually the counterpoint. I know you think she's being hyper, but I find her like as an outsider, right? She's the counterpoint to मामू। बड़े मामू की हम्म। बदतमीजी. She keeps saying हमारी तहजीब, हमारे अखलाक इस चीज की इजाजत नहीं देते. हम आई नो, आई नो। परंपरा, and I love that she says that, because what she is reminding everyone कि we come from very proud traditions of mehmandari. We come हम्म। from amazing traditions of ikhlaqiyat, and so much in our culture that forbids this kind of behavior. हम्म। And वो ये है ना कि so I think that in my opinion, right, I think Zafar Miraj Saab actually did the counterpoint, but maybe it's coming over as a little hyper to It's you coming because of over the, as compensatory. It's not yeah. coming over as balanced. You getting me? Like for Okay, well, example, हाँ मैं इसलिए yeah, मैं कह रही हूँ कि जी मैं देख लूंगी, मैं इसलिए मैं बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर रही, एंड में करूंगी राइट ऑफ अगर करना हुआ right. तो। जैसे मेरा मेरा ये कहना है ना कि जैसे अगर आपने दो खानदान दिखाए हैं, अब क्या होता है Hmm. जो एक राइटर जनरली करता है, या हमें जनरली अच्छे राइटर्स में हमने देखा, जफर मिराज साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन क्या Very. होता है जब आप जैसे काबली पुलाव था, काबली पुलाव में जब आपने दो दो खानदानों को देखा कि जी वो एक पंजाबी है जिसकी बड़ी ट्रेडिशनल पंजाबी सी फैमिली है, उसमें हर तरह का शेड आपने देखा था। एक यूजर था वो जो अदनान शाह टीपू का कैरेक्टर था, Hmm. भाभी अच्छी हैं, एक भाभी ऐसी है वो सेल्फिश है, एक बहनोई अजीब सा ना तो सबसे ट्रायम्फ तो उनका एहतशामुद्दीन सर का कैरेक्टर था. हाँ सो ठीक है ना। कैन वी इमेजिन हिम एज द रोमांटिक हीरो? हम सोचते हैं हमारे बड़े रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं, अब भी एंड फ्रॉम यज्ञ ही, का आई सफर। मीन दे वर वुमेन फेंटिंग, राइट? आई यूज्ड टू या इसके हाजी थर्स्ट, साहब. थर्स्ट हाय एडिट्स थे हाजी साहब. भाई, हाजी साहब के थर्स्ट एडिट्स थे इंस्टा के राइट. ऊपर, लेकिन टिकटॉक के ये ऊपर। उनको क्रेडिट जाता है कि ही स्टाइल्ड हिज कैरेक्टर सो वेल. वो परी नहीं बने थे या वो डैशिंग यंग मैन, लेकिन अपने पर्सनालिटी और स्टाइलिंग से उन्होंने इतना एक पर्सोना क्रिएट किया था. इट हैड अस इन थ्रॉल. आई सो मीन आई गो बैक टू अलिफ्स डायलॉग, मैं आपका एहतराम करता हूँ, एहतराम मोहब्बत पैदा करती है। तो हमजा का जो डायलॉग था कल्बे मोमिन का, तो मैं कहती हूँ मोहब्बत बाद में आती है, पहले एहतराम आता है। तो एहतशामुद्दीन के कैरेक्टर में, हाजी साहब के कैरेक्टर में बारबीना के लिए एहतराम था। वो लड़कियां क्रेव करती हैं और मर्दों को लगता है कि अगर मैं गुस्से में हाथ पकड़ के उसका स्लो वॉक करके प्राडो में घुस जाऊंगा तो ये मोहब्बत है। कंजर्वेटिव माहौल में या किसी भी माहौल में जो टीनेजर्स है ना, दे फैंटेसाइज लाइक दिस। ये वो इस टाइप की हाँ बड़ी चलो। एक्साइटेड है. हाँ रियल लाइफ में हो तो आपको नील पड़े हो अपने बाजुओं के ऊपर हाँ, नहीं से कि ऐसे बिल्कुल टॉक्सिक oh लोग होते हैं God. ये। हाँ बिल्कुल नफरत हो जाए ऐसे इंसान से। तो एनीवे, कमिंग बैक टू बिरयानी, आई थिंक दैट Yeah. मेरा ये इशू एक तरफ है, बट आई स्टिल फाइंड इट वेरी एंगेजिंग। आई थिंक दैट होना ये चाहिए था कि जब मैं काबली पुलाव की बात कर रही थी, काबली पुलाव में आपने दोनों तरफ से, इवन जो वो जो उसका फियांसे हस्बैंड, कौन हस्बैंड था ना, He कौन was था, a, yeah, it हाँ was वो a जो, हाँ Faratullah. Yeah. फरतुल्ला जो आता है, और Yeah. वो पूरी जो उसका उसका ट्रैक भी बड़ा हार्ट ब्रेकिंग ट्रैक है, और That's वो very एक्चुअली sweet. अफगान हाँ. रेफ्यूजीज की जो एक प्लाइट है, और जो अफगानिस्तान में जो हैवक था, उसका जो एक रियल लाइफ इम्पैक्ट लोगों को पड़ा है, किसी की लिम्ब्स जा रही हैं, कोई बेचारा कैंप में पड़ा है, कोई लड़की इस तरह रेफ्यूजी बन के आ गई है। तो एंड देन यू रियलिटी। सी द कॉन्ट्रास्ट विद पंजाब के वो कपड़े बेच रहे हैं लाहौर में, उनकी दुकान है, किसी को राह से नहीं आ रही, ये जोड़ा नहीं, ये हाँ नहीं. इसमें हाँ और वो जो बरबीना की सिचुएशन थी, एक जोड़ा होता है, जिसकी शादी होती है वो पहन लेती है, राइट? हाँ देन यू सडनली गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफिकल्टीज शी इज बीन थ्रू. बिल्कुल। और ये जो डिफिकल्टीज थी, इट वाज नॉट विदाउट humanizing the Punjabis also. It wasn't demonizing Punjabis in any way, because your lead character was somebody who was sympathetic to her plight, and he was trying to push back against all the negativities that were coming at him because he was with this girl, right?
मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको ये बैलेंस करना पड़ता है। अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है बिरयानी में। अभी एक तरफ को दिखाया जा रहा है कि अब ये मैं नहीं कह सकती कि 6-8 एपिसोड्स बाद हमें इस फैमिली के अंदर कोई नया ही कोई मसला नजर आएगा, वो भी सकता है। बिकॉज at the end of it, I truly hope that Zafar Saab is not attempting to glorify or justify or whitewash feudalism, because that really is not No, something I that would be expect would. very wrong. And That that would is be. not, I mean, संगत के बाद तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अब ये भी अगर No, उन्होंने कर he दिया तो has फिर improved. I think he's improved. If you look at Sangat and then in Car went a little downhill towards the end. हम्म Lekin I think the Lashkara and then oh, Lashkara was amazing. Kabli Oh my Pula, God. हम्म I think that we have seen an evolution. for Now, going sure. to this, I wanted to say that I loved Ramsha Khan in this. You know हम्म why? I've seen Ramsha Khan play Badtameez Ladkiyan, right? In Hum Tum, right? या Because घिसी for पिटी मोहब्बत. some reason, every girl from Karachi has to be, मैं अभी आपको सीधा कर दूंगी, and which is not true because the people I know from Karachi, oh, बल्कि they have better manners, right? They do not challenge people on the road and do, especially when हालात इस टाइप के और हैं. जेंटलमैन, गुंडों को Yeah. उठा के हमें तो बचपन से कहते हैं, बेटा जो मांगे गुंडा दे देना, भाग जाना वहां से, जान बचा लो अपनी अपनी. जान और इज्जत की हिफाजत करो. बिल्कुल. सो आई एम अ लिटिल सिक ऑफ दिस स्टेरियोटाइप. सो आई हम्म रियली लाइक रमशा. ठीक है, शी इज अ लिटिल एम्बिशियस, शी इज अ लिटिल असर्टिव. होना भी चाहिए, राइट, इन अ सिटी हम्म लाइक कराची. हम्म लेकिन शी इज विद इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी. हम्म रिस्ट्रेंट उसने दिखाई है. दोनों, खुशहाल ने भी रिस्ट्रेंट दिखाई है अपने कैरेक्टर में, और इसने भी, कि भाई एक लेवल होती है व्हेन यू ऑफ काइंड ऑफ लाइक ऑडेस्टी. वो नहीं हम्म होता, किसी हद तक वो बदतमीज होंगे लेकिन नॉट एक्चुअली बदतमीज है. हाउ शैल आई पुट इट? हम्म boisterous, I'm looking for the word, right? हम्म Someone in our comments can say. तो हम्म yes, they do push back against authority, लेकिन not in a rude way. हम्म So I liked, and Ramsha, and this is something that I was talking about, the styling. Ramsha ने अपनी styling इतनी खूबसूरत की है, right? It's absolutely lovely. Simple suit, simple clothes. कोई वो glamour करने की कोशिश नहीं की है, and she looks amazing in this. This is Now, done by Badr Mahmood, right? yeah, अच्छा, this is the thing with Badr Mahmood. I have a lot of, मेरे पंगे हैं throughout reviews. बदर महमूद का ये है कि वो बहुत अच्छा करते हैं तो एकदम फिर ना कुछ अजीब सा कर देते हैं फॉर अरे अभी कमर्शियल. तक तो मेरे हिसाब से नहीं किया उन्होंने ऐसा कुछ, और नो मेरे नो, हिसाब ही इज से तो डूइंग इस वेरी तब इसमें तो वेल. इतनी लाइट है, मैं तो हैरान हूँ कि मैं यकीन ही नहीं आ रहा था कि बदर महमूद ने डायरेक्ट किया ये आप ये है. बिग, ये क्या ये आप ही हैं बिग बैंग वालों जिनमें इतनी ये लाइट है, वेल, ड्रामे आई में हैव इतनी लाइट. फीलिंग, I've said this before कि बदर महमूद can produce amazing work, he just doesn't want to, right? मैंने कहा भी है ना ये पहले. हाँ तो उनका मन नहीं करता, एकदम उनका मूड ऐसे फ्लिप होता है. अच्छा, लेट्स गो बैक टू बचपना. हम ना ऐसा करते हैं, ए को जी के साथ, बी को डी के साथ, और फिर बट ऐसे ये उस करते बेचारे का तो कसूर नहीं है, तो राइटर और चैनल का डिमांड होगा हैं. ना. कुछ कुछ है. अच्छा कुछ ना है. कुछ, ना अच्छा. माने, ना माने. ओके. अब इस लेवल पे आ गए हैं कि ना माने, ना कुछ अपना. हाँ हाँ कुछ अपना करें, हाँ ठीक है But ठीक है. going back to the story, I'm going to say that I don't know why people are so impressed by Gul Meher, right? Because a lot of दे people are आर. speculating, is she a BV? Is she this? मुझे ना, I am one of those people. मुझे बदतमीजी तो पसंद नहीं, लेकिन I like education का मतलब है to be assertive for your rights, हम्म right? And women who go quietly into the night कि मैं इसकी बीवी बनूंगी और सबका नौकर बनूंगी and all of this, I don't admire it particularly, हम्म right? And I see a very motherly connection between them, but maybe, knowing this is a Zafar Maraj drama, अक्सर पता चलता है जी एक पहले बीवी थी, right? And I kind of got that is such a cringe scenario, but maybe it'll happen. But let's see what happens. But I think Sarvat looks amazing. She's doing a fabulous job. It's just the actual character is not someone I particularly admire. हाँ वो But तो I don't चलें, एक see अलग बात है ना, वो तो chemistry यू between डोंट them. यू डोंट लाइक Do द you? कैरेक्टर. Yeah. Do you see any chemistry between Sarvat and Kushal? क्योंकि a lot of people are mentioning that. I don't. मुझे तो आई बहन भाई डोंट सी इट इधर. मुझे भी बहन भाई लगे थे या कजन्स लगे थे, और मुझे ये लगा था कि इवेंचुअली ये होगा कि उससे कहा जाएगा कि इससे शादी कर लो, क्योंकि ये हम्म, कजन है तो जमीन, क्योंकि ये होता है ना फ्यूडल्स में कि कजन से शादी कर लो ताकि जमीन अंदर ही रहे, फैमिली में ही रहे. और वो जो उसका बेटा है जो जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, I don't think वो बेटा, I think इन सबका छोटा भाई वो है. छोटा भाई है. ओके. आई हम्म. थिंक दैट्स अ रियली वेल डिपिक्टेड कैरेक्टर. आई एम हम्म. ग्लैड दे शोड दैट कैरेक्टर. दे शोन हिम विद अ लॉट ऑफ Is it नुआंस. well depicted? Is it?
well See, because I disagree. I mean, I don't have that much experience, but I think mm, ये जो white washing होती है of neurodivergence as ये तो फरिश्ते हैं, ये तो है, हाँ वो it तो खैर मुझे लगता है downplays the difficulties that parents and caretakers have. also The it downplays the needs that these children have. hmm, मतलब आप उनकी needs भी on their own what they really need आप नहीं hmm, अंडरस्टैंड कर रहे होते, आप उनको राइट ऑफ कर देते हैं और इस तरह की एजोटेरिक बातें करके और इस तरह की वो जो हाईफलूटिंग नॉनसेंस होती है कि जी ये तो पेरेंट्स को तो जी बड़ा ये कोई स्पेशल मिला है लाइफ में चैलेंज और आपने जरूर कोई नेकी की होगी इसलिए आपकी नेकियां बढ़ रही हैं। ओ भाई एवरीबॉडी वांट्स अ नॉर्मल गुड लाइफ, एवरीबॉडी right. वांट्स चिल्ड्रन हु आर हैप्पी एंड And you हेल्दी। kind of underestimate the help that parents require, the नीड understanding एग्जैक्टली। and the empathy that they need to get through this challenge. एंड ऑल्सो वाइट वॉशिंग इज अ वेरी गुड वर्ड यूज, मतलब किसी की स्ट्रगल को ऐसे लेप देना कि ओह ये Mhm. तो आप भाई बड़ा नेकी कमा रही हैं। हाँ ठीक है मैं नेकी कमा रही हूँ, मुश्किल है अभी भी, आप कमा लें, Mhm. आपको कमानी है नेकी, आया के कमाएं जरा, नहीं Helping कमाएंगे ना। instead of saying कि तुम या नेकी करो नेकी कमा रहे हो and अकेले ही कमा लो, हम नहीं कर हम्म, रहे तुम्हारी हेल्प, जरा अकेले ही नेकियां खाओ तुम, अयाशी करो नेकियों के टब में बैठ के। भाई आप भी करो ना आके, आप भी हिस्सा दो, आप हेल्प करोगे हमारी, आप भी नेकी कमाओगे, आप करोगे नहीं करोगे ना। तो इसलिए प्लीज मुझे ये बातें नहीं सुननी। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल वो कॉन्वर्जेशन तो बिल्कुल ऑफ है, लेकिन हम्म, एज अ कैरेक्टर जब आप, मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि हर ऑटिस्टिक कैरेक्टर भोला नहीं होता, जो मजे right. मजे की बातें करता है वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, वो भी They're होते हैं। not, they're not entertainers They're not actually. entertainers Human and they're not beings. funny, and they are, the struggle is real, and the struggle is Hmm, real especially for parents who have to take care of them or family members who have to take care of that. So I think that बहुत empathy के साथ उन्होंने दिखाया, so I appreciate the drama for that. hmm. I don't appreciate the conversations around it sometimes, and that is just the kind of conversations I have to hear sometimes even in real life. So yeah, I'm wary of that. It's kind of, I think it's an evolution. I It's think an with time, evolution for sure. No, writers and will sort of it had, understand. well, it's a reflection of Pakistani society. So Hmm. the kind of conversations that are already there, writers will also write that, and audiences Of will also course, yeah. accept it. And that is why reviews like ours are important, because we have to contextualize and we have to provide a larger context for these kind of things. Sort of next drama on our list is Ek Jhooti Kahani. Very entertaining. Very, very I love entertaining. it. I I love love it. I love Zara Noor Abbas in this. Oh my God, she is a delight as that an actor. actress is so good. She could carry anything. She could make me believe anything. Jitna bhi ridiculous situation hoga na, and she's got such an on-screen presence that whatever she says or does, वो होचा या stupid या foolish नहीं लगता. I हम्म think चेहरा भी उसका ऐसा भोला सा है या something. नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रही है वो इस ड्रामे में। और उसके अंदर वो जो एक, मतलब एक तो मैं उसको इसलिए मैं उसको पेग डाउन भी नहीं कर रही मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल में, मैं उसको यही, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ परफॉर्मर लाइक जारा, कि आप उसकी एक्टिंग को सिर्फ उस रोल के लिए उसके हिसाब से देखें कि यार ये इतना परफेक्ट किया है इसने, मैं सोच भी नहीं सकती कि ये कोई कैटेगरी है या ये कोई और कैरेक्टर करेगा, ये बहुत अच्छा कर रही है, बहुत कमाल का काम कर रही है। मजा आ गया उसकी परफॉर्मेंस देख के, Hmm. इतना अच्छे इतने प्यार से उसने इस रोल को किया है, इतने एफर्टलेसली वो ये रोल कर रही है। मोहित मिर्जा अगेन अमेजिंग, Oh, उज़मा he's बेग। a straight foil, isn't he? ओ नहीं वो जो गॉड। एक सीधा foil होता है to show up the craziness that's in Zara Noor Pass, right? And they actually have surprisingly good chemistry. हु I'm वुड kind थॉट। of, I never thought, right? बहुत So बहुत that, अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा। कुछ और ज्यादा मेरे पास तो रिव्यू है नहीं करने के लिए, बस मुझे बस बहुत मजा आ रहा है, मजा करना है, एंजॉय करना है, एक्सेप्ट फॉर दोस पांच बहनें, ड्रामा फ्लॉलेस है। बहुत घटिया केमिस्ट्री है पांचों के बीच में, कोई ढंग का डायलॉग डिलीवरी नहीं देने वाला वहां पे, कुछ सही नहीं है उस पूरी डायनामिक में, बाकी हर चीज बहुत फ्लॉलेस है। बेकार, you आपने know, पूरे ड्रामे का सत्यानाश किया हुआ है you know उस what has ट्रैक की happened? वजह से। This is my prescription. वो नहीं है drama doctor. My prescription is that if they had, अपने जहेज के लिए मत समेटते वो एक एक एपिसोड ना, टीवी हाँ। थोड़े से एपिसोड ज्यादा होते और वो अलाउ करते ऑडियंस को टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद दीज गर्ल्स, उनकी हम्म अपनी पर्सनालिटीज, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वो इतनी वाइल्ड क्यों है, कुछ हम्म ह्यूमनिटीज थे उन लड़कियों को, राइट? हम्म That is what's missing there. And I think that's because that's going to, knowing Amna Mufti, who is a brilliant writer, that is going to come up later on. So, देखते हैं देखते हैं। अच्छा एक hmm. ड्रामा जो खत्म हो रहा है बिल्कुल, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ही पहुंच गया है, वो हमारा फेवरेट है राजा रानी, ऑल्सो रिडिकुलस, ऑल्सो रिडिकुलसली बिलीवेबल बट रिडिकुलसली एंटरटेनिंग।
अब ridiculously believable तो नहीं कहते, ridiculously unbelievable, but It's ridiculously OTT. It's over the top. over I the mean, top, कुछ yeah. भी हो रहा है, but हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, सही है, फिर क्या होगा? नहीं, but you see, and this is what I want to say to writers. देखो, मुझे थोड़ी सी feeling आ रही है that they're stretching the last two or three episodes. I feel the last 2 weeks they हम्म। have, the story has been stretched कि भाई अच्छा, अंकल को किसने तो उसका मारा था, रिडेम्पशन टाइम है ना। पापा को, या हाँ, इट्स द पापा राइज को ऑफ द किसने सन। मारा, हाँ हाँ। राजा के साथ रहेगी रानी या जावियार के साथ जाएगी. I feel there's a lot of stretching involved, but why I'm willing to watch it still is because they have kept the internal logic of the serial and the script going. हम्म। Acha, Raja is, what's his name? Xavier, Baba is now Xavier again. हम्म। He's his personality. So हम्म। he's reconnecting with Rani. He didn't immediately say कि I know you और हाँ मैं grateful हूँ इसलिए शादी रख रहा हूँ. Do you know what I mean? It was pretty logical. नो, एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेल एक्टेड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, कोई फ्लॉड वो नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो सेंस बन रहा है उनका, इवन दो ओवरऑल स्टोरी रिडिकुलस है, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्वर्जेशन, उस रिडिकुलसनेस में भी उन्होंने उसकी कोई लॉजिक की, कोई रूल्स रखे हैं, और उन रूल्स को वो फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज द, जब आप एक रिडिकुलस वर्ल्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ सर्टन रूल्स पे आपको स्टिक करना पड़ता है, जो कि मैं कहती हूँ कि अगर हम, अब जैसे जिनकी शादी उनकी शादी आ रहा है, तो वो फुल ऑन हॉरर आ रहा है ना, तो वो मैं चाहती हूँ, आई एम होपिंग, राइटर हैं सैयद नबील, और तो आई एम रियली होपिंग के सैफ हसन ने डायरेक्ट किया, तो सैफ हसन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो आई एम श्योर कि वो इस तरह के झोल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं ना जो दुनिया से अलग है, जिसको उर्दू में कहते हैं माफाकुल फितरत है, डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल, मतलब सुपर नेचुरल है ऑलमोस्ट, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल सेट करने होते हैं, यू हैव टू स्टे ट्रू टू द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है जब खलील साहब ने जेंटलमैन लिखा था, या कभी कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जो आप कहते हो यार बेरुपिया, कोई स्टोरी किधर जा रही है, कभी कोई कैरेक्टर It उधर से was आ जाता है started out so well. so This is well, and then you so hard. screwed it over so bad. So khair, that is not happening in Raja Rani, which is why I'm still addicted. It's one of my favorite watches, despite it being what 34, 35 episodes. My God. So I mean, but कहीं wrap up कर दें please अब. I have a feeling that they're waiting for Raja Rani to finish and then they'll put Jinki Shadi, Unki Shadi I on. think so. I think so. It's 8th September, so I think we have a week or two more to go. 8th Yeah. September को start हो रहा है जिनकी शादी उनकी शादी. I'm actually very excited for it Very because excited about Raj it. Ali is brilliant at वो जो What a एक brilliant actor, yeah. comedy and humor Very good and he actor. such a wide range. देखो melodrama, the deeper acting, and now this And kind of horror comedy, can I say right? what a brilliant idea for him was to sign this? That's Hmm. exactly the kind of career move you need at this point in time, where you've just come off the heels of Free. a train wreck like Sun Mere Dil, and you need exactly this And man, game, and you need a game changer. Because bro, you deserve a game changer. Because you're such a brilliant actor. If you won't test your chops with game changing moves, then who will? बिकॉज हर एक ना, हर बंदे का सीलिंग होता है, अच्छे एक्टर का मतलब गिफ्ट ये होता है कि वो कोई भी वर्ल्ड में जाके कोई भी सीलिंग टच कर सकता है, वो हॉरर में बहुत ऊंचा जा सकता है, वो कॉमेडी में बहुत ऊंचा जा सकता है। कॉमेडी में तो हमने देखा है कि वहाज की अमेजिंग टाइमिंग है, घिसी पिटी मोहब्बत, अहदे वफा, और जो भी उन्होंने ड्रामे किए हैं जहाँ पे उनको एक लाइटर साइड उनका जो था दिखा, तो वो कमाल था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाज अभी भी बहुत अंडर एक्सप्लोर्ड हैं, और उनको अभी भी बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो वो नहीं कर रहे हैं, तो आई एम ग्लैड दैट ही I disagree. I think he's done a very wide range, right? Because देखो ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं है. He's done, क्या छोटा सा रोल था सदाफ उसमें उनका, बहुत yeah, but छोटा रोल, still, it was a very different role. It wasn't the kind and of, डिफरेंट बट स्मॉल, वेरी स्मॉल। आई वॉन्ट टू सी, okay, लाइक दिस व्हाट आई थिंक अबाउट सज्जल। अब वो पिंक शर्ट तो हमें नसीब नहीं होगी कभी देखना, अच्छा. लेकिन सज्जल और वहाज मुझे ऐसे एक्टर्स लगते हैं कि मुझे लगता है I'd कि love to see them together. They you would know, be and I amazing. want to see them Yeah. together in a drama that is just about them, like जब मैं स्क्रीन टाइम की बात कर रही हूँ, तो मुझे स्क्रीन टाइम में उनको ज्यादा देखना है बनिस्बत और लोगों को, वो जो एक्स्ट्रा वाइज एक्स वाई जेड ट्रैक्स होते Ideal हैं। time, right? This is me casting, right? You ओके, know, Sajal and Wahaj in a sarcastic comedy, right? यार Because भाई, both आई of थॉट them दैट are, वाज व्हाट पिंक yeah, शर्ट वाज, नो? yeah. Oh, acha, I didn't know that. But haven't Okay. you seen the Thought it trailers? was It something seemed like serious. a offbeat Acha, sarcasm commentary kind of बीगुल ने लिखा था उसको, तो वो तो ऐसे acha. ही लिखती हैं। So I think that is, Beagle थोड़ी सी serious है, right? I don't know how she'll write a comedy, but देखो, something maybe by Amna Mufti or by yes. Mustafa Afridi. That would be amazing.
So guys, we are wrapping up, and फायजा before we leave, इफ्तिखार वाली स्क्रिप्ट जो है ना, क्या मिट्टी हो दे रहा है बाप, उसका मिट्टी दिवावे का I वल्ला अला? don't know yet. I mean, we're still praying and hoping, but I've heard that's kind of a kind of sarcastic, kind of like a cynical take on life. So let's see. She writes really well, so I'll be looking forward to that. I Last don't get drama. absolutely no idea who's being cast in that. So don't say, okay, oh, Sadaf said this, that, and the other. No, So, no, we don't know yet. We still have to talk about sort of one last moment to talk hmm. about Masoom. What's happening with Masoom? Acha Masoom, I'm gonna say okay, Masoom, I was expecting, as usual, people love 90s Bollywood. Hmm. So, I mean, it does have a little mixture of a lot of kind of those elements, and it's becoming a big hit because Hmm. people love Imran Ashraf. But I feel that this kind of stylized characterization that he does, sometimes it does him a disservice. It does get him ratings and stuff. But I think that sometimes he should aim for a little better of a character. But it's fun. He Hmm. playing that musician and everything. I think Sonia Hussain is the weak part in it. But maybe when we get to a more emotional side of this script, that Hmm. she will come into her own. But yeah, it's very entertaining. But it's not something कि जो मेरा दिल करता है कि मैं देखूं, Hmm. right? Because Hmm. it's very much been there, done that, but then that doesn't mean there's anything wrong with it. कुछ लोग enjoy करते हैं that been there, done that stuff, you अच्छा, know? बिंदे डन दैट और वो टिपिकल ओटीटी बॉलीवुड स्टाइल्ड चीजें तो लोग देखते हैं, उसका एक पैलेट है भी, तो वो देखने जा रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ बिकॉज आई रियली लाइक इमरान अशरफ समहाउ आई एम स्टिल watching, it's, I don't even call it a hate watch. I'm not exactly hating it. I'm not exactly enjoying it. It's middling through somewhere. um Hmm. and like because मेरा एक रूटीन होता है, मैं रात को अपने ड्रामे देखने होते हैं मुझे, तो जब कुछ नहीं होता तो फिर मैं ये देख लेती हूँ। एक और ड्रामा जो मैं देख रही हूँ वो बहार नगर है, मुझे नहीं पता मैं क्यों देख रही हूँ, So बट मैं yes, देख I've seen it too. It's actually quite it's funny it's because very funny. it's totally unpretentious. अच्छा ये ड्रामे I should hate them, right? लेकिन they're so funny and They're so silly funny and and silly make and no ridiculous. sense, right? Brain rot. Brain rot category. Yeah, Brain rot category. Acha, Masoom is not even brain rot because Masoom no, makes me want to go like, please stop this. And and it's just like she's making these like, अब हमें मोहब्बत हो गई है, और फिर उसमें भी वो एक टिपिकल स्टेरियोटिपिकल उर्दू स्पीकिंग बाप है, हम नवाब हैं और ये हम। अव्वल तो भाई नवाबों वाली बातें अब कोई भी नहीं करता है, पता नहीं कौन कर रहा है, राइटर्स के दिमाग में कोई क्या चीज आ रही है कि राइटर्स। say one thing, right? देखो, I think Fahad Mustafa said this way back कि एक मैं ड्रामा क्वालिटी का बनाता हूँ, एक मैं मैसेज के लिए बनाता हूँ, एक हाँ, कमर्शियल। So what it is with these things is I believe that this is for a different audience. That doesn't mean to say नो I सदफ, hate it. नो आई डोंट And एग्री। that's what I was saying. नो, आई डोंट, आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू आई डोंट एग्री। शीरी फरहाद, ठीक है, एक सो कॉल्ड दूसरा टाइप का ड्रामा था, मोल्ड ब्रेकिंग पीरियड ड्रामा, यो डम स्क्रिप्ट की जो डम्बनेस थी वो, एंड अगेन इट हैड सच गुड मोमेंट्स, ग्रेट कास्ट, ग्रेट Mm. प्रेमिस, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, अ मैन रैक्स टू रिच स्टोरी। क्या किया उन्होंने इस ड्रामे के साथ यार, किस तरह बुरे तरीके से। मेरे ख्याल से 14वीं 15वीं एपिसोड के बाद मैंने कहा था या अल्लाह ये You know ड्रामा why? Because टॉर्चर। I feel that I think Hum TV is suffering a little bit right now. कुछ attention उनको भी चाहिए. A हम्म। lot of their dramas are like I'm very excited for जिनकी शादी, उनकी शादी, and this great Amna जमा Mufti drama, तकसीम, एंड etc. जमा तकसीम Yeah. ऑल्सो इज कमिंग। Acha, this is another thing. Can we jump to Jama Taksim? यस प्लीज। Because, this is an upcoming drama starring Talah Chahur and Mawra, मावरा who was हुसैन। apparently aged backwards and now looks 16. Right? हम्म। Whatever you're doing, Mawra, can I do it too? Because I'd like to look 16. Right? So, Talha and these two, and that joint family system. I think बीमारी है वहाँ हमारे पाकिस्तान में to glorify the joint family system when it actually, it suppresses people, ruins lives. डू यू ये रियली थिंक इट ruins lives? yeah, it does because look, I feel that joint family system चलता है और कुछ लोगों को फायदा होता है, हम्म। particularly the गुंडा types, जो हम्म। हर वक्त ना, you'll see this. I think the best example of this was by Abdul Khalik Khan's Baby Baji, हम्म। right? You saw who the victims were and you saw जो benefactors were,
benefactors are the father and mother, the older generation, and possibly the children because they're protected. But you see the mid-level crunch के जो नासिर अपनी बीवी को हर वक्त मारता रहता है. So हम्म there is a lot of, and then वो जो एक जवेरिया साउद अपना टिपिकल रोल कर रही थी बदतमीजों वाला. So everybody had to put up with जवेरिया साउद्स कैरेक्टर्स, बदतमीजियां, असराती बहू, right? हम्म Because we have to keep the family together. वो नीचे से सबकी जड़ें काट रही होती है. हम्म So there are those things, and I hope whenever we do drama about joint family systems, it's not just about one bahu. It's the way that a lot of people's hopes and dreams are suppressed so that a few other people can get through life. Okay, my 2 cents. I Go think ahead. it's about personalities. I have known many people, including people in my family, who've lived with joint families and who've lived with their in-laws, and their in-laws are incredibly kind, Mm, incredibly loving. The bahus are able to work, they are able to take care of their children better, they are able to rely on support better. Sometimes those girls didn't have support from their own families, and the mm. in-law stepped in a huge way and did everything they could to support the daughter-in-law, did everything to help, bring up the children better. वो financial crisis है, health crisis है, बहू का सी सेक्शन हुआ है तो उसमें हेल्प जा रही है, और वो मूव नहीं कर पा रही है वगैरह वगैरह. ऑन द फ्लिप साइड आई ऑल्सो नो फैमिलीज जहाँ पे औरतें पिस रही हैं, जलील हो गई हैं, just because they have terrible people as in-laws. So I think that it's wrong to blame the system. I think that उस सिस्टम के बेनिफिशरीज भी हैं, उस सिस्टम के विक्टिम्स भी हैं. एट द एंड ऑफ इट व्हाट मैटर्स इज हाउ यू ट्रीट पीपल एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. क्योंकि कभी कभी आइसोलेशन में जो फैमिलीज पल रही हैं वो भी बड़ी कोई गड़बड़ तरीके से पल रही हैं, उनको भी बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है. और मुझे लगता है खुदा ने ये रिश्ते बनाए हैं इसलिए क्योंकि इनका कोई पर्पस है. जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली है या जो करीब की फैमिली, इनका कोई पर्पस है अपनी जगह पे. और Apart हमें from gossiping about you, right? यस, आई थिंक इनके ये वो रिश्ते होते हैं, और जो हम कहते हैं ना कि पलट के वापस आता ही है मोहब्बत एक वक्त के बाद के, जब आपने अपने बच्चों को इतनी कुर्बानी दे के बड़ा किया होता है तो फिर आप कुछ ना कुछ उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बुरे I, वक्त में. I think we're confusing extended family with joint family system. You know, when we ओके. say, oh, फलां की फूफी मासी चाची ने ये किया, right? That's हम्म extended family. In a हम्म joint family system, you're living in one house with one family, right? या There's मैं भी उसी की you. बात कर रही हूँ. Yeah. Yeah. No, no. There is extended family जो बाहर आपके घर से रहती नहीं, है. एक्सटेंडेड Right. फैमिली के भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिली की भी कुछ हमारे साथ कनेक्शंस होते हैं, कुछ उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं हमारे साथ. मैं ये सिर्फ बात कह रही हूँ कि फैमिली जो होती है ना वो रिश्ते के होने से नहीं बनती, वो रवैये से बनती है. और रवैया अगर अच्छा नहीं होएगा तो जॉइंट क्या, आप दूर भी बैठे होंगे कुछ अच्छा नहीं होएगा. और अगर आप अच्छे होंगे तो दूर बैठे लोगों से भी आपको मोहब्बत जागेगी, और करीब होके भी आपके वो बर्तन उस तरह नहीं खड़केंगे जैसे दो कमीनों में खड़कते हैं. अच्छा, ऐसा होता है, प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट, ये होता है. तो जॉइंट फैमिली वो तो हर जगह होता तो हर है, जगह चाहे होता है, वो मियाँ बीवी घरों में के लिए होता है. मिले ना. हाँ. वो आप देखते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली होगी, अपने अपने घर खुश हैं, एंड देन दे गो टू अ दावत जो एक दूसरे को 1 घंटे के लिए मिलना होता है. तो जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना होता है वो कर लेते हैं हम्म. उस 1 घंटे में ही, कि भाई पार्टी पे जाना है, साल में मिल रहे हैं, बट दे विल नहीं, क्रिएट लेकिन दैट. लेकिन ना ज्यादा इसमें गिव एंड टेक होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ और एक बंदा मुझसे 90% ऑफ द टाइम अच्छा है, तो मैं 10% उसकी कोई बुराई इग्नोर कर सकती हूँ. लेकिन अगर एक बंदा, मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ और एक बंदा मुझसे 90% ऑफ द टाइम बुरा है, तो फिर चल मैं सर आपकी जड़ें आपकी काट जड़ें काट रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो मैं 10% उसकी अच्छाई भी नहीं देखूंगी, और फिर एट द एंड ऑफ इट 100% कबाड़ा होगा. तो मैं यही बात कह रही हूँ कि इट इज ऑल अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन. इट इज नॉट, लेट्स नॉट थ्रो द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर वाली बात जो मैं हमेशा करती हूँ. Well, मुझे लगता है कि this is written by Sarwat Nazim. हाँ, एंड शी He's इज a वेरी very नुआंस्ड, deep writer. या शी इज अ So वेरी गुड inshallah राइटर. we'll see something deeper. Okay. Definitely, because even in Yuhi, she made a huge comment about what was the up and down of expats, or what was the recent drama that we saw, दस्तक. दस्तक के Hmm. अंदर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स उन्होंने बनाए थे जिसमें कुछ चीजें जस्टिफाइड थी, कुछ कंसर्न्स जस्टिफाइड थे कि भाई वो बच्चा बाहर का है, तुमसे कैसे मोहब्बत करेगा, तुम जवान हो, Hmm. तुम्हें तो कोई भी फैमिली तुम्हें पसंद कर सकती है, तुम किसी को भी शादी कर सकते हो, तुम्हें एक शादीशुदा बच्चे वाली के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई वगैरह वगैरह. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर, उसने वो लेजिटिमेट क्वेश्चंस उठाती हैं, तो आई एम श्योर कि वो इस ड्रामे में भी उठाएंगी. आई रियली लाइक
I really like the sensitivity of this the trailers and the teasers. I think कि हम्म। बड़े प्यार से उन्होंने इस चीज को होता है ना कि तला जहूर के कैरेक्टर वही टिपिकल सा लड़का है, जब वो बीवी बताती है कि वो तो उसको हरास कर रहा है तो वो बिलीव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आज तक तो कभी कोई शिकायत नहीं आई तो अब कैसे आ गई, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ शी इज गोइंग टू टैकल इट, एंड दैट्स व्हाई आई लव पाकिस्तानी ड्रामाज. हम ये जिंदगी की छोटी उलझन सुलझन जो होती है हम लोगों की, वो उनके ऊपर कितनी अच्छे, हमारे अच्छे राइटर्स हैं एटलीस्ट, सारे ही अच्छे हैं तकरीबन, अलावा एक दो के जिनके बाद हम कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई. तो लेकिन ये बड़ी अच्छी राइटर्स हैं, हमारे अच्छे राइटर्स में से सरवत हैं, सीनियर और बेहतरीन राइटर्स में से हैं. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट शी इज going to offer us. Guys, let us know, okay, what are your expectations from Jamaat Takseem Sadaf? Is that all for this week? I think so. I think that we've had a really, I think we've got an improvement coming. We've got a Yes. wave of good new dramas Yeah, because I think things were going a little bit downhill now. very very stressful Right. for And us. then immediately I get replies underneath, कौन सा डाउनहिल, हम तो एंजॉय कर रहे थे वो ड्रामे से. ओके, वो आपका ज़ौक है, मेरा जरा फर्क है, दैट्स ऑल. Mm-hmm. And this is why I'm a little bit careful sometimes with mass produced dramas like say Mohra, or I think there's Cut पल दो Putli, पल. Bade Bhaiya, Pal Do हाँ. Pal, right? They have their audience. बट Enjoy. दे सी, आई थिंक एक किसी भी इंडस्ट्री में हर किसी की एक जगह होती है. इस तरह के Right. ड्रामे भी बनने I चाहिए, said जैसे मैं about Masoom, right? मासूम और I may not like that kind of Pulp Fiction 90s बट उसकी Bollywood. भी जगह है, कोई तो उसकी भी एंजॉय जगह है. कर रहा है. लेकिन ना हाँ. हर चीज एक पीस ऑफ आर्ट तो नहीं बन सकती. मंटो 2.5 साल शूट हुआ है. अब 2.5 साल पे अगर एक ड्रामा शूट होकर रिलीज होने लगा तो चल गई इंडस्ट्री. तो आपको सोच चाहिए सोच ऐसे? के देखा होगा ना. नहीं नहीं, वो शूट भी क्योंकि ज़ाहिर है सब बड़े स्टार्स थे, सबकी टाइमिंग्स ये वो, फिर बीच में हुमायूं का लव गुरु ये वो सारा कुछ. तो अब, ऐसे ड्रामे भी बनते हैं, बनने चाहिए, और ऐसे ड्रामे भी बनने चाहिए मास प्रोड्यूस ड्रामे, 25 एपिसोड हर रोज, एक एपिसोड देखो, ब्रेन रॉट करो, खत्म करो. ये सब तरह के ड्रामे जरूरी होते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि कुछ एक तो रेड लाइंस नहीं क्रॉस होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट वी मेक, नो मैटर व्हाट कैटेगरी. अब्यूज को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, हरासमेंट को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता. सिमिलरली आप जब इस तरह की ट्रिगरिंग थीम्स दिखाएं या मेंटल हेल्थ की थीम्स दिखाएं तो उस पर जरा सोच के लिखें, विच वाज माय बिग बीफ विद द बिग ड्रामा परवरिश. या इस तरह के जब मैं ऑटिज्म के ऊपर ड्रामे देखती हूँ, मैंने रांझा रांझा कर दी से भी मेरा मेन मसला यही हुआ था, जिसपे बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे उस ड्रामे की टीम में से, कि भाई ये आप नहीं दिखा सकते, ये चीजें आप नहीं बता सकते, इस तरह नहीं आप इस चीज को दिखा सकते. तो बड़ी चीजों को आई थिंक मद्देनजर रखने चाहिए, छोटी छोटी चीजें चले हम इग्नोर कर ही देते हैं. सो दिस इज इट फॉर आवर डिस्कशन दिस वीक गाइस. आप लोग बताइएगा आपको कौन से ड्रामे अच्छे लगे, कमेंट्स में शुरू हो जाएं लड़ाइयाँ करना, शाबाश. तो हम फिर मिलेंगे आपसे. कोशिश कर रहे I हैं आपके think पास. for the most part we have very good audience. या वो हमें they increase our knowledge. हम कुछ गलत भी कह दें वो हमें बड़े प्यार से करेक्ट हाँ, जैसे करते मैंने एक स्टेटस डाला था गलती से, उसमें मैंने विचेस ऑफ हैमलेट लिख दिया था, तो लोग ऐसे पागल हुए, आपने मैकबेथ क्यों नहीं लिखा. मैं कहा भाई गलती हो गई, नींद में लिख दिया था, अब नहीं लिखूंगी आइंदा. तो हो जाता है. लेकिन चलें जी, बड़ा शुक्रिया जिस जिसने करेक्शन की. जो लोग आगे बात Well, करना a wise man accepts correction. A ऑफ fool कोर्स, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है. So सोक्रेटिस we ने कहा था ऑल आई नो इज आई डोंट नो एनीथिंग. तो मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सिर्फ अपना जो भी ओपिनियन है दे रही हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा थोड़ा कोई जस्टिफिकेशन लॉजिक भी देनी चाहिए अपनी बात की, ऐसे ही वटा नहीं फेंकना चाहिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइस. सदफ को फॉलो कीजिएगा, उनके इंस्टाग्राम ट्विटर के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे. हम मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह कुछ नया लेके. आमना मुफ्ती से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होपफुली लाइन अप हो जाएगा. सरवत नज़ीर से भी कोशिश करेंगे बात हो. और इसके अलावा जो भी हमारे पास जो हमें टाइम देगा हम उससे बिल्कुल बात करेंगे. करते रहिए आप लोग भी एक दूसरे के साथ जमा तकसीम कमेंट सेक्शन में. हमें डोंट फॉरगेट टू लाइक, आई सेड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने जान हाथ माल से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा. खुदा हाफिज.